do a role play, because for a counseling training, it is difficult to show actual counseling process to anyone. And so for counseling training, a role play is the effective method. So today we will do role play, and I have experienced that our therapy is more easier to do than REBT or CBT, because we can ask our client to do some practical participation. Experience is important in our therapy. So it is not only talking therapy. Psychotherapy is mostly recognized as talking therapy. In all other therapies, therapist is talking with his client, but in this therapy, along with talking, we ask some exercise. So we give some So let us start our role play. Dr. Mayur, welcome. Yes, sir. Thank you. Yes. सर आपला आवाज थोडा आणखीन जोरात आला तर बरं होईल. We'll start the role play. I am working as a therapist and Dr. Mayur is a client. Sir, if you can increase your volume little bit, please. Welcome, Mayur. Can you listen me? Sir, आवाज थोडा बारीक येतोय. The voice is little bit low. आता पहा. Yes, sir. Is it okay? Yes. Okay, thank you. So let us start. Welcome. Have a seat, relax. And could you share why you want to meet me? Why you have taken my appointment? Do you have any emotional issue? Yes, sir. Sir, I should speak in English or Hindi? Yeah, in English, Hindi, mix. Mix, okay. Sir, actually, I got your reference from one of my friend who attended your session, and I am suffering from this emotional stress since many months, and I'm taking not many therapies also for it. Like I'm on antidepressants, not able to sleep properly. So many issues are there, and he talked about your therapy, so I joined this particular session. Thank you, thank you. Welcome. So you are at right place now. Yes, sir. Are you taking any medicines? Yes, sir. Anxiolytic antidepressants medicines are going on for it. Okay. Since And for many how many days. days you are on medicines? Sir, from 3 to 4 months I'm taking these medicines. Okay. And when these symptoms, can you notice when you have the first symptom of this emotional problem? Sir, can I share my story? What exactly happened with me? Yes, yes, yes. Please. So basically, mine was a love marriage, so I had to fight for it a lot, and it actually happened on the day of the marriage itself. Means I should have been very happy, actually, ideally, but on the day of marriage, I all of a sudden landed in very depressive phase. To the extent that just before 1 hour of marriage, I was sleeping very badly, and I couldn't even understand why this is happening to me. I should have been happy at very much, and I was altogether very, very low.
एंड देन माय माइंड स्टार्टेड मेकिंग एनालिसिस फॉर इट कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट रीजंस फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। ओके, सो ऐसा यानी कि क्या, कौन से थॉट आते थे? सर गिल्ट का थॉट आता था कि मैंने शायद मेरे फैमिली का दिल दुखाया है, वो करके ऐसा किया है। ओके, पास्ट में मेरा गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कुछ रहा है, इसके वजह से ऐसा लगता है कि शायद मैंने धोखा दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आई है जिंदगी में, ऐसा लगता है कि कभी कुछ किया नहीं, मम्मी पापा ही सब कुछ करते रहे लाइफ में, और एकदम से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसके वजह से ऐसा लगने लग गया कि अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता, तो मुझ में कुछ आगे करने का उत्साह ही नहीं रहा। ये मैंने उसके पीछे का लॉजिक लगाया, अभी ये सही है गलत पता नहीं सर, लेकिन उसके वजह से एकदम लो फेज में आ गया। ओके, ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव डन? सर कुछ भी नहीं हो पा रहा था उसमें, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं, निरुत्साह, सोते रहने की इच्छा, यही सब चीजें होती थी। सो यू वांट टू कम आउट ऑफ इट? यस सर, डेफिनेटली। सो एट प्रेजेंट डू यू हैव these थॉट्स यस सर, आई एम हैविंग दोस थॉट्स। और सर इसमें about? प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मुझे बाहर तो आना है, लेकिन अंदर से बाहर आने की इच्छा भी नहीं होती। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है कि अंदर से ऐसे लगता है कि इसी फेज में रहूं, लेकिन सोशली देखा जाए तो आई नो दैट इट इज नॉट राइट, इसलिए बाहर आना है, इसलिए अंदर से झटका नहीं बैठता, ऐसे कह सकते हैं। तो इसी फेज में रहने के क्या बेनिफिट्स है? सर बेनिफिट्स तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं लाइफ को फेस ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे लगता है, ओके, इसलिए ऐसे लगता है कि कंफर्ट जोन नहीं छोड़ू, अभी जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। लेकिन आपके करियर में ये बाधाएं हो सकती है ना, हाँ करियर सर, ग्रोथ? बहुत बाधाएं हो रही है इसमें, इसकी तो वजह ये से जो मैं किसी को। अंदर का फील होता है कि हाँ, इसी स्टेट में रहूं, उससे उस फील को इम्पोर्टेंस देना है या नहीं देना है? नहीं समझा नहीं सर, क्या पूछ रहे हैं आप? तो जो अंदर का फील होता है कि ये जो डिप्रेस मूड है, यही हम्म। ठीक है, यही रहना चाहिए, ऐसा एक thought मन में आता है, हम्म। बराबर है जी ना? सर। जी सर। तो वो थॉट है, हम्म। वो यूजफुल है या यूजलेस है? यूजलेस है देखा जाए तो। ओके, सो ये आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये जो थॉट है हम्म। ये यूजलेस है, बराबर? तो आपको ये जो इमोशनल प्रॉब्लम के कारण जो यूजलेस लगता है, गिल्ट लगता है, वर्थलेस लगता है, हम्म। ऐसे ऐसे फीलिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बिहेवियर पे क्या असर दिखाई देता है? सर किसी से बातें करते वक्त आंख मिला नहीं सकता, किसी से बोलने की हम्म, इच्छा नहीं, एक ही जगह पर आइसोलेट रहकर रहने की इच्छा होती है। जैसे एक आदमी खुश रहता है तो उसको लगता है कि वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए, कितने लोगों से मिले, लेकिन जब ऐसी बराबर, फेज आती है तो ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट हो जाओ, पूरी तरीके से अकेले रहो, किसी से मिलूं नहीं, बात नहीं करूं, ये सब होता है। बराबर, बराबर। तो इसका भी असर आपके करियर पे होता होगा। बिल्कुल। तो ये सब जो कुछ डिप्रेशन की फेज है, इससे बाहर निकलना है, करेक्ट? जी सर। बराबर, अब दोहरा सकोगे? यस सर। हाँ, क्या क्या, सो व्हाट इज द एम, व्हाई यू हैव मेट मी? डिप्रेशन के फेज से टोटली बाहर निकलना है। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। तो इससे बाहर निकलने के लिए मैं आपको कोई अटेंशन एक्सरसाइज सिखाऊंगा। आपको फिजियोथेरेपी तो मालूम होगी? तो क्या होता है जी, फिजियोथेरेपी में? अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं मसल्स को बराबर, तो रिलैक्स वो करने, एक्सरसाइज के कारण क्या होता है? मसल डेवलप जॉइंट होते हैं। स्टिफनेस है या जो भी कुछ है हम्म। बराबर, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं अपने बॉडी में, अच्छा। हम्म। बराबर है?
तो डम्बेल्स का एक्सरसाइज अगर किया तो बाइसेप डेवलप होता है अपना आर्म का। बिल्कुल। तो ये जैसा फिजिकल एक्सरसाइज है वैसे ही ये अटेंशन ट्रेनिंग ये ब्रेन के एक्सरसाइज है। तो आपका ये जो कुछ इमोशनल इश्यूज है उसके कारण ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो वो दूर करने के लिए ये अपने जो कुछ अटेंशन एक्सरसाइज है वो आपको करने चाहिए, और वो मैं अभी आपको सिखा सकता हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। तो ये जो पहला अपना एक्सरसाइज है, तो ये अटेंशन एक्सरसाइज में फर्स्ट important part is you have to pay attention to present moment. तो आपको तो ये महसूस हुआ होगा जब भी ये डिप्रेशन की फेज होती है तो बहुत बार पास्ट के या फ्यूचर के थॉट्स आते हैं मन में। बिल्कुल। तो अब हमें ये अटेंशन का एक्सरसाइज करके अपना ध्यान बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए अब बताऊंगा। एक हाथ ऐसा सीने पे रख लो, एक हाथ पेट पे रख लो, बराबर, थैंक यू। अब आंखें बंद करके आपकी जो कुछ नेचुरल सांस चल रही है, नेचुरल ब्रीदिंग, सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उसके साथ छाती की या पेट की जो कुछ हलचल होती है उस पे ध्यान देना है। हलचल महसूस हो रही है? जी सर, पेट में हो रही है, पेट में हो रही है, ओके गुड। तो अब वो जो हलचल हो रही है यानी कि सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, तो उसे काउंट करना है। तो मैं 30 सेकंड काउंट करूंगा, आपको उस 30 सेकंड में कितने सांस की साइकिल होती है वो काउंट करनी। ओके। तो मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट ऐसा इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। तो आपका पूरा ध्यान अपनी सांस की मूवमेंट पे है, सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है और वो महसूस हो रही है। तो सांस अंदर गई और बाहर गई तो काउंट करना 1, फिर से सांस अंदर गई और बाहर गई तो काउंट करना 2। तो स्टार्ट काउंटिंग। Good, thank you. Open your eyes. Can you count how many? 7 हुए। You can count. Okay, good. और ये जो 30 सेकंड थे उस समय आपके मन में कोई थॉट्स आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। Great. So this is the experience you are giving to your brain. जो अपना थिंकिंग ब्रेन होता है उसे हम ये 30 सेकंड के लिए अभी रेस्ट दी है। तो ये जो ऐसे ये जो 7-8 सांस आप दिन में 3-4 बार ऐसे देख सकते हैं। सर लेकिन हाथ रखना ही पड़ेगा उसके लिए? हाँ, पहले तो हाथ रखना पड़ेगा, बाद में हाथ न रखकर भी आपको सांस की हलचल मालूम होती है। अभी देखो हाथ न रखकर मालूम होती है क्या? आंखें बंद कीजिए। हो रही है तो सर हाथ नहीं होता है, देखो नहीं हो रहा है, मालूम हो रहा है जी। उतना स्ट्रांगली नहीं है लेकिन अभी किया है इसलिए पता है कहाँ पर क्या हो रहा था, बराबर। तो इसलिए वो हाथ रखना पहले आवश्यक होता है।
लेकिन बाद में हाथ न रखकर भी कहाँ भी आप मीटिंग में भी हो तो उस समय भी आप सांस पे ध्यान दे सकते हो। तो ये जो डिप्रेशन का एक कारण ऐसा होता है कि हम हमेशा थिंकिंग मोड में रहते हैं, अपना ब्रेन हमेशा थिंकिंग मोड में रहता है, विचारों में रहता है। और जैसा आपने कुछ इवेंट बताया तो उसके कारण तो वो विचारों का जो ब्रेन है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऐसा कहते हैं, ब्रेन का एक पार्ट है, तो वो अधिक एक्टिव रहता है। तो उसे बार बार बीच में रेस्ट देनी चाहिए। तो जो कुछ अभी आपने किया वो उस ब्रेन के एरिया को रेस्ट दी। तो ये कर सकोगे दिन में 4-5 बार? इजी है सर, बिल्कुल इजी है ना? हाँ। तो मुझे बताओ, जब आप ऐसा दिन भर में कर सकते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हो कि आज मैंने किया, 4 बार किया, 5 बार किया। ओके, कर सकते सर। हो? लेकिन जब मैं बहुत लो मोड में रहूंगा, हम्म, जब बहुत लो रहता है, हम्म, तब भी ये करने की इच्छा अंदर से नहीं होगी। तो उस समय, हाँ, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बराबर तो उस बराबर है, समय खुद को कैसे। बराबर, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक तो पहले सुबह उठकर अपनी मूड क्या है उसे देखना चाहिए। आपने देखा है कभी? तो मैं नहीं अब सर। दूसरा एक एक्सरसाइज आपको बताता हूँ हम्म, कि आपकी जो कुछ मूड होती है, अपनी मन की जो कुछ स्थिति होती है, उसे हम नंबर दे सकते हैं। अच्छा। तो अगर वो न्यूट्रल है तो 0, यानी कि कुछ अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। देयर इज नो एनी फीलिंग गुड और फीलिंग बैड। लेकिन वो 0 जब नहीं रहता तो हम फीलिंग गुड, तो वो कितना फीलिंग गुड है वो हम नंबर दे सकते हैं। हम्म, तो जब बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो तो 5, यानी कि जब हम गाते हैं, नाचते हैं, तो उस समय 5 पॉजिटिव, +5। हम्म, उससे कम होता है तो +4, +3, +2 या +1। और वैसे ही जैसा आपने अभी बताया कि बहुत ही लो मूड है तो -5। तो जब -5 ये मूड स्टेटस होगी तो उस समय आपको ये कुछ याद भी नहीं होगा कि ऐसा हम्म, देखना चाहिए, सांस देखनी बिल्कुल चाहिए हाँ। वगैरह। लेकिन वो -5 भी हमेशा नहीं रहती। तो कभी तो वो -4 आएगी, -3 आएगी, -2 हम्म, आएगी। तो ये समझ गया है, ये नंबरिंग। हाँ सर। तो अभी इस क्षण में आप अपने मूड को नंबर दे सकते हो? बिल्कुल सर। सर, हाँ, तो कितना? जब आया था तब -2 होगा, अभी +2 है। ओके, गुड। तो ये जो है, मन की स्थिति को अपना नंबर देना है। तो एक जैसा एक्सरसाइज, सुबह उठ के बेड में ही अपनी मन की स्थिति को जानना है। हम्म, आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट को मॉर्निंग में ही ज्यादा तकलीफ होती है, हाँ सर, बेड से बाहर निकल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उठने के, और उसका गिल्ट होता है आगे, क्योंकि 10-11 बजे उठे तो लगता है सब दिन खराब हो गया। जैसे शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी सब बटन गलत लगते हैं, तो ऐसा लगता है बराबर कि इधर गलती हो गई। बराबर बराबर। तो वो जो ऐसा होता है, इसके इसमें भी हार्मोन्स का एक कारण होता है। तो सुबह के समय ये डिप्रेस मूड रहना ये अधिक संभव होता है। हम्म, तो एक तो एक्सरसाइज आपको करनी होगी कि सुबह जब आप बेड में हो तो उस समय ये काउंट करना कि अभी इस समय मेरी मूड स्टेट क्या है। हम्म, अगर वो -5 है तो उस समय भी आप नहीं कर सकते हम्म, जैसा हमने। लेकिन बाद में तो -4 होता है, तो अगर आपको ये याद आया और आपने उस समय उसको नंबर दिया तो आप -5 नहीं है, क्योंकि -5 है तो याद भी नहीं आएगा वो। बराबर है? तो कल सुबह ये कर सकोगे? हाँ सर, ट्राई करूंगा। ओके। सो सुबह
नींद खुलती है तो खुद को पूछना कि इस समय मेरे मन की स्टेटस क्या है। वैसे ही अभी रात को सोते से पहले भी खुद को ये पूछना। और दिन में और 3 बार ये करना है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, दोपहर लंच के समय और शाम को हाई टी जब हम लेते हैं उस समय। यही ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज। हाँ, वो ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करने से पहले अपने मूड को नंबर देना। नंबर देना। अभी जैसा आपने दिया +2, तो वो जो कुछ है माइनस प्लस वो नंबर देना अपने मूड को। ये दूसरा एक्सरसाइज। जी सर। समझ में आया है? यस, क्लियर है एकदम। हाँ, तो ये उससे भी नोट करना और मुझे भेजना। हर रोज भेज सकते हो या 2 दिन के बाद भेज सकते हो। ठीक है? तो इससे क्या होगा? ऐसा थिंकिंग करने ब्रेन, से क्या होगा? थिंकिंग ब्रेन को शांति मिलेगी थोड़ी देर हम्म? के लिए। थिंकिंग ब्रेन को हाँ, रेस्ट जब आप मिलेगा। सांस देखते हो तो थिंकिंग ब्रेन को शांति मिलेगी। लेकिन जब आप अपने मूड को नंबर देते हो तो क्या होगा? तो उस समय तो आप थिंक कर रहे हो। तो माइंड को मैसेज जाएगा कि इस नंबर पे आप, भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या ऐसा कुछ। हाँ, माइंड को मैसेज जाएगा कि इस मूड पे ऐसी स्थिति हो रही थी और इसके बाद मूड इस तरीके से चेंज हो रहा है, इंस्टेंटली भी चेंज हो रहा है, ऐसे समझेगा। that's a great experience. Thank you. You are very intelligent. तो ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अपने ब्रेन को देना चाहिए कि ये जो कुछ मूड स्टेटस है वो भी चेंज होने वाली है। वो हमेशा एक ही मूड स्टेटस नहीं रहती। माया -5 होती है तो भी -3 होती है, -1 होती है। कभी अभी जैसे आपने बताया कि -2 थी और वो +2 हो गई। तो अपनी ये जो कुछ मन की स्थिति है ये भी बदलती रहती है। तो अब हमें और एक कंसेप्ट समझ लेना चाहिए और आज का सेशन हम पूरा करेंगे। तो सेशन के आखिर में आपको एक एक्शन प्लान लिखना है और वो मुझे भेजना है कि अभी हमने जो कुछ डिस्कस किया उस वो आप क्या क्या हर रोज करोगे। हाँ, यस सर। तो जब आप अपने मन को देखते हो, अभी आपने अपने मन को देखा ना, मन का स्टेटस, तो क्या किया? आप मन से अलग हो गए। जब आप डिप्रेस्ड रहते हो तो आप ही मन रहते हो। वो डिप्रेस्ड जो मन कहता है वैसा ही आपका बिहेवियर होता है। बराबर है? तो मन कहता है कि आज नहीं जाइए काम पे। जैसा आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि शर्ट का एक बटन ठीक नहीं लगा तो पूरा शर्ट वो बटन नीचे ऊपर रहते। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। तो अगर दिन की शुरुआत ठीक नहीं हुई, इट्स ओके बोलना चाहिए, इट्स ओके। यस यस, इट्स ओके, करेक्ट। सो ये याद रखना चाहिए। तो ये इसे हम कहते हैं ये होश रखना। और ये होश के साथ आप देख सकते हैं कि मन कैसा है इस समय। तो मन को साक्षी भाव से देखना ये अपनी थेरेपी का एक बहुत ही आवश्यक चीज है। जब आप मन को नंबर देते हैं तो वो साक्षी भाव से देखते हैं, क्योंकि जब हम काउंट करते हैं तो उससे अलग होना पड़ता है। जब आप किसी भी चीज के अंदर रहते हैं तो काउंट नहीं कर सकते उसे। बराबर है? बराबर है सर।
तो जब आपको अपने मन को नंबर देते हैं तो आप मन से अलग होते हैं। तो ये जो मन से अलग होना, ये आपके डिप्रेशन की दवा है। अच्छा, समझ गया? कोई क्वेश्चन है आपके? सर ये तो अभी 1-2 मिनट के लिए दिन भर ऐसी एक्टिविटी होगी, हम्म। लेकिन तो बाकी दिन समय जो में निगेटिव थॉट्स आते रहेंगे वो तो आने ही बराबर वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर बराबर कोई कंट्रोल नहीं है। बराबर तो तभी क्या करना चाहिए उस वक्त? बराबर। तो कौन से थॉट को आप निगेटिव कहते हैं? सर मेन है गिल्ट वाला आता रहता है, बराबर बैड एक्सपीरियंसेस, पीछे की जो जो मैंने गलतियां की है वो सब बराबर। चीजें, हम्म। फिर वर्थलेसनेस, मेरी लाइफ में कुछ रहा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो खुद को कम समझना, लो कॉन्फिडेंस, बराबर। तो ये सब ये चीजें जो जो है। थॉट्स है, ये सब थॉट्स है, ये कौन से टेंस के होते हैं, पास्ट या फ्यूचर? पास्ट, मोस्टली पास्ट पास्ट के के ही होते होते हैं, और फ्यूचर का डर रहता है थोड़ा हैं। सा, फ्यूचर का फ्यूचर का थोड़ा डर डर। रहता है कि मैं इसी फेज में रहा तो आगे ये नुकसान होगा, ये बराबर थोड़ा बराबर रहता है, लेकिन मोस्टली पास्ट है। बराबर। तो जब भी आपको ये होश आता है कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, हम्म। आपको वो ये विचार आते हैं ना ऐसे? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो जब वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जब फ्यूचर के बारे में विचार और वो जो एंजाइटी होती है, तो उस समय क्या करना है। हम्म। हम्म। लेकिन आप उस समय अपना ध्यान प्रेजेंट टेंस में ला सकते हो या नहीं? अगर बहुत -2 मुश्किल लगता है। माइनस, मुश्किल लगता है। तो दूसरी एक, जब ऐसे बहुत ही निगे ऐसे थॉट्स मन में आते हैं, तो उस समय मेरा मन बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसी नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, ऐसे तो कर सकते हो सर। इस समय मेरा मन बहुत ही डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड। बराबर है? ये एडमिट करना तो तो आसान है। हाँ ये एडमिट करना आसान है, क्योंकि हाँ, ये एडमिट करना निगेटिव आसान है, लेकिन एक्सेप्टेंस। मैंने, हाँ, तो मैं एक ये जो सेंटेंस है, इसमें एक खूबी खूब है। तो कौन डिप्रेस है? मेरा मन। हाँ, तो आप नहीं हो। नहीं। क्या डिफरेंस है? साक्षी भाव लाया हमने, मैंने देखा मेरे मन को डिप्रेस होते हुए। ग्रेट ग्रेट। या सो डोंट फील बैड अबाउट फीलिंग हम्म। बैड। बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि अगर जब आप फीलिंग बैड को जब फिर से बैड ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो वो एक विशियस साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, चेन रिएक्शन बन जाती है पूरी, एक बराबर के बराबर पीछे एक के पीछे एक निगेटिव शुरू हो जाता है लगातार। बराबर बराबर। तो ये जो हमने बातें की, ये तुरंत आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, तो भी जब हम्म। भी आप अप्लाई कर सकोगे तो खुद को शाबाशी देना, अपलॉड योर हम्म। सेल्फ, कि आज बिल्कुल, मैंने एक ब्रेन का ये ये जो करके दिखाया। पैटर्न है वो चेंज किया। हम्म। ठीक बिल्कुल है? सर। तो अब हम सेशन के आखिरी पार्ट में है। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया, कैन यू समराइज इट एंड मेक अ एक्शन प्लान? क्या हाँ क्या सर। करोगे कल से? सर मुझे सुबह उठकर पहले तो मूड को मार्क्स देने हैं, ग्रेड देना है, -5 से लेकर 5 के बीच तक। फिर जो भी ग्रेड होगा, -5 का तो मुझे समझ में आएगा ही नहीं मोस्टली, बहुत मूड खराब होगा तो। सपोज बराबर। मैं -2 में हूँ, तो मुझे वो देखना है, और वो ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज जो आपने बताया 30 सेकेंड्स का, वो उधर ही बेड बराबर। पे भी मैं कर सकता हूँ। फिर ग्रेट। यही रिपीटेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसे 5 टाइम्स करना है। मूड को पहले ग्रेडेशन देना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, और फिर से अवेयरनेस में आना है कि पहले मेरा स्कोर -2 था, अभी -1 भी हो गया तो इट इज एन अचीवमेंट, और मैं खुद को या बैकअप करूंगा कि ये करके दिखाया। साक्षी भाव ने, भाव से अपने मन को देखा और अलग करके दिखाया उसको,
बराबर बराबर, एक्सलेंट। तो ये 2 एक्सरसाइज करने हैं। हम्म, और एक मैं बताऊंगा आपको, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो क्या दिन में? सर इच्छा तो बहुत होती है, पता भी है सब सूर्य नमस्कार वगैरह, लेकिन हो नहीं पाता। हम्म, तो और एक, आप सुबह उठने के बाद एक प्लानिंग कर सकते हो दिन में क्या क्या करना चाहिए। कर सकते हैं सर। तो वो प्लानिंग करके मुझे भेजो कल। जी सर। हाँ, तो सुबह जो काम पे कितने बजे जाओगे, घर कितने बजे आओगे, और क्या क्या करोगे, तो उसमें एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी एक टाइम टाइम। रखना चाहिए। तो ये रिजोल्यूशन। हम्म। और दूसरा एक रिजोल्यूशन, हर घंटे में जब ये आप 5 बार ये करने वाले हो, उस समय भी हम्म। अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो सुबह नमस्कार नहीं डाल सका, शाम को डाल सकता हूँ क्या? अगर सूर्य नमस्कार नहीं तो वॉकिंग के लिए जा दूसरा। सकता हूँ क्या? तो एक 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 घंटे का रिजोल्यूशन करना। हम्म। व्हाट विल आई विल डू फॉर नेक्स्ट 1 आवर, हम्म। जिसे हम संकल्प कहते हैं। हम्म। तो एक तो सुबह संकल्प करना, जैसा आपने अभी हम्म। बताया, 5 टाइम ये करने का, और उसके साथ एक फिजिकल एक्सरसाइज। हम्म। वैसा ही हर घंटे संकल्प करना कि नेक्स्ट आवर में मैं क्या करूंगा। हम्म। ये ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि माइंड अपने जो सोचा है उस जोन में रहे, दूसरे थॉट प्रोसेस में ना चला जाए। बराबर बराबर। तो ये जो सुबह किया हुआ संकल्प यूजफुल नहीं होता दिन भर, बाद में हम्म। फिर माइंड का मूड जब नीचे जाता है तो ये न हम्म। करे, ऐसा ही मन में थॉट आता है। हम्म। बिल्कुल सही। तो अब हमें ये जो संकल्प है ये दोहराना चाहिए बार बार। हम्म। तो दिन में अगर सुबह नहीं हुआ तो शाम को 5 मिनट तो कुछ ना कुछ शरीर के लिए करूंगा, कुछ हम्म। नेक मूवमेंट करूंगा। अगर बाहर जाने जैसे बारिश है तो ठीक है। हम्म। तो आप अपने ब्रेन के अब बॉस बनने लगे। हम्म। डिप्रेशन यानी कि ब्रेन आपका बॉस होता है, उसमें केमिकल्स चेंज होते हैं और वो बॉसिंग करता है आपको। अब ये हम्म। करना नहीं है, ये करना है। अब एग्जैक्टली। हम्म बिल्कुल। अब थोड़े थोड़े समय के लिए हम अपने ब्रेन का बॉस होना चाहिए। तो ब्रेन ने बताया नहीं करना चाहिए, फिर भी संकल्प दोहराना। और ठीक है, मैं शोल्डर तो हिलाऊंगा, गर्दन तो हम्म। हिलाऊंगा। तो अपने ब्रेन का ये जो बॉसिंग है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। हम्म। और जब वो आप आहिस्ता पूरी तरह कम कर सकते हो तो वो डिप्रेशन की सारी दवाई आप बंद कर सकते हम्म। अरे बाप रे, दैट्स ग्रेट। हो। ऐसा हो जाए तो सच में चमत्कार हो जाएगा सर। तो ये चमत्कार नहीं है, ये थेरेपी का अपना रिजल्ट है। लेकिन ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। हम्म। तो हम कनेक्टेड रहेंगे। अब ये टेक्नोलॉजी है तो इसके कारण हम कनेक्टेड रह हम्म। सकते हैं व्हाट्सएप पे। सर तो सबसे ये इम्पोर्टेंट जो बात इस थेरेपी की यह है कि पुश देने वाला, आप जैसे बाकी के सेशंस में रहता है कि सेशन दे के छोड़ देते हैं, हम लोगों को जरूरत होती है कि कोई ना कोई कंटिन्यूस पुशअप देता रहे, क्योंकि माइंड ने पुश करना छोड़ दिया होता है। तो आपसे की हुई बातें और छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे छोटे टास्क, ये बहुत मायने रखते हैं। बराबर बराबर। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड हम फिर 8 दिन के बाद मिलेंगे। जी और सर। वो जो एंजाइटी होती है तो उस समय क्या करना चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट टूल हम देखेंगे। तो आपने जो एक्शन प्लान बताया है उसमें और 2 एक्शन प्लान आपको बढ़ाने होंगे। कौन से? अपने एक्शन प्लान का 2 चीजें बताई है, वो हम्म। 5 बार हाँ नंबरिंग अभी करना वो और सांस पे ध्यान देना। हर घंटे का प्लानिंग। बराबर, करेक्ट। और एक दूसरा भूल गया सर। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना।
हाँ एक्सरसाइज करते रहना दिन में। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज और उस समय शरीर पे ध्यान देना ये बहुत आवश्यक है। तो ये भी अपने ब्रेन का एक एक्सरसाइज है। तो कोई भी आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ गर्दन हिला सकते हो, शोल्डर हिला सकते हो। तो उस समय अपने बॉडी पे ध्यान देना और जो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है वो करना। तो ये 4 एक्शन प्लान आप मुझे मैसेज कीजिए जो बिल्कुल सर। अपने। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस सर। हम मिलते रहेंगे। जी सर। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन एंड रोल प्ले। ग्रेट। थैंक यू सर। मजा आ गया सर। सो या तो ये खत्म होने तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम व्हाट्सएप पे इसका बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत पार्टिसिपेंट्स ने ऐसा बताया कि रात नींद अगर लेट ली तो कल के